Now in the previous slide we had taken two structures, noun and pronoun plus helping verb, and the second structure was noun and pronoun plus main verb. We had not seen the usage of helping verb and main verb in the same sentence. हमने अभी तक helping verb and main verb की साथ में usage नहीं देखी थी. इस स्लाइड में we will see the usage of helping verb and main verb in the same sentence. Now how do we go about it? Let's see. The first structure, that is the noun and pronoun plus helping verb. Helping verb की form be. Be की forms कौन सी हैं? Is, am, are, was, were. In present is and am and are, and past में was and were. If they are used, then the main verb is used in continuous or ing form. Now if you see, she is the noun and pronoun here. Is the form of be, and writing, write का ing form, that is writing a letter. They is the pronoun here. वह, were is used with plural, so they is plural. Remember this, they is plural, were is used with plural, were is plural form. Noun and pronoun plural हो, helping verb plural होता है, तो were is plural. Sleeping, sleep का ing form, sleeping peacefully, वो बहुत शांति से सो रहे थे, बहुत सारे लोग थे. Now the next structure, noun and pronoun plus helping verb, that is have. अगर helping verb have है, have का present दो forms होती हैं, has and have, and the past form of have is had. There is only one past form of have, that is had. Remember this. Now plus main verb. मेन वर्ब का हम जब हैव के फॉर्म्स लगाते हैं, मेन वर्ब के हमेशा पास्ट पार्टिसिपल और द एन फॉर्म यूज होता है. सो शी हैज रिटन अ लेटर. शी इज सिंगुलर, इसके साथ हैव की सिंगुलर फॉर्म, हैव इज हेल्पिंग वर्ब. अगर नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा. तो शी हैज रिटन अ लेटर. दे प्लूरल है, सो दे के साथ हैव की प्लूरल फॉर्म इज हैव. दे हैव स्लेप्ट पीसफुली, वो आराम से सो गए हैं. So these are the two forms that you need to really understand very carefully. However, when we do tenses, these forms will get clearer to you, and we will practice a lot at that point of time. So let's get on to the next slide. Now this slide I have devised for us to practice and become better at the concept. Let's do this exercise together. The first question, Lily, Frank and I dash joining a neighborhood swimming team. The options are am, is or are. Now I have told you with I we put am. However, if you see the noun or pronoun, there are three people in the subject, that is the noun and pronoun. There are three people being used, so this becomes plural. Now if the noun or pronoun is plural, we use plural forms of be. So am, is and are, we use are. Now the second question, I dash thought about joining the team for a couple of months. The options are have, am or has. Now thought is the main verb used here. Thought क्या होता है? think करना. think का past form हुआ thought. Thought is the past participle form of think as well. Now if we are using past participle form, if you remember the earlier slide, we have seen that with the past participle form we only use the forms of have. So I, have or has. Now I के साथ हम have use करते हैं कि has use करते हैं? हम I के साथ have की form have use करते हैं. So I के साथ I have thought about joining the team for a couple of months. Now there are two things that you have to consider. आपको यहाँ पर ये देखना है क्या मेन वर्ब यूज हुआ है. अगर मेन वर्ब है तो क्या वो ing फॉर्म का है या वो n फॉर्म है. अगर ing फॉर्म का है तो be की फॉर्म्स यूज होंगी. अगर n फॉर्म है तो have की फॉर्म्स यूज होंगी. और किस पे डिपेंड करेगा? बी की फॉर्म्स और हैव की फॉर्म्स या डू की फॉर्म्स किस पे डिपेंड करेंगी? आपके नाउन और प्रोनाउन पे डिपेंड करेगी.
सो यहाँ पर थॉट था, थॉट वॉज एन फॉर्म ऑफ थिंक, तो इसके साथ हमें हैव की फॉर्म्स यूज करनी है। अब हैव की फॉर्म हैव और हैज दोनों दी हुई है। अब आई के साथ हम हैव यूज करते हैं, तो द करेक्ट ऑप्शन इज हैव। नाउ फ्रैंक डैश टेकन ड्राइविंग लेसन्स एट YMCA पूल। फ्रैंक डैश टेकन, नाउ टेकन इज द एन फॉर्म ऑफ टेक, तो एन फॉर्म यूज हुई हुई है, तो इसका मतलब हैव की फॉर्म्स यूज होंगी। सो फ्रैंक इज सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम हैव में हैज यूज करते हैं, सो हैज इज द करेक्ट ऑप्शन। सो फ्रैंक हैज टेकन ड्राइविंग लेसन्स एट अ YMCA पूल। वी डैश प्रैक्टिस्ड अ लॉट। प्रैक्टिस, यहां पर मेन वर्ब प्रैक्टिस्ड यूज हुआ है। प्रैक्टिसन इज नो एन फॉर्म, सो प्रैक्टिस का एन फॉर्म पास्ट फॉर्म सेम रहेगा, सो एन फॉर्म विल बी प्रैक्टिस्ड। सो वी, अब एन फॉर्म यूज हुआ है मेन वर्ब का, तो इसके साथ हम हैव की फॉर्म्स यूज करेंगे। हैव की यहां पर दो फॉर्म्स दी हुई हैं, हैज एंड हैव। सो वी इज प्लूरल, वी के साथ हम प्लूरल फॉर्म ऑफ हैव दैट इज हैव यूज करेंगे, सो हैव इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। वी हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट, हमने काफी प्रैक्टिस की है। द टीम्स कोच डैश एनालाइजिंग एवरीवन्स स्ट्रेंथ। नाउ एनालाइजिंग, ING फॉर्म ऑफ एनालाइज। अब यहां पर मेन वर्ब ING फॉर्म का यूज हुआ है, तो इसका मतलब हम बी की फॉर्म्स यूज करेंगे। नाउ बी की फॉर्म्स यूज करेंगे तो अब हम देखेंगे कि नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है। सो द टीम्स कोच, टीम का कोच, एक ही कोच है, सिंगुलर है, सो द टीम्स कोच इज सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम इज का यूज करेंगे, सो इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। आवर टीम्स सीजन डैश नॉट बिगन। बिगन इज द एन फॉर्म ऑफ बिगिन, यहां पर नेगेटिव एन फॉर्म यूज हो गया है, नॉट बिगन, नॉट आ गया है, नॉट से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सो नॉट बिगन एन फॉर्म, बिगिन का एन फॉर्म हुआ बिगन, सो आवर टीम्स सीजन। अब एन फॉर्म यूज हुआ है मेन वर्ब का, तो एन फॉर्म के साथ हैज या हैव यूज होता है। अब टीम का सीजन है, एक ही सीजन है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम हैज यूज करते हैं। वी डैश गोइंग विद माई मदर टू अ स्पोर्ट्स स्टोर टुमारो। बहुत क्लियर है, गो का ING फॉर्म यूज हुआ है, गोइंग। अब ING फॉर्म यूज हुआ है, तो ING फॉर्म के साथ हम बी की फॉर्म्स यूज करेंगे। नाउ वी इज प्लूरल, वी प्लूरल है, तो बी की प्लूरल फॉर्म हुई आर, तो वी आर गोइंग विद माई मदर टू अ स्पोर्ट्स स्टोर टुमारो। I dash outgrown the swimsuit I wore last summer. Outgrown. So outgrown is the N form of outgrow. Outgrow का N form यूज हुआ है यहाँ मेन वर्ब का। अगर मेन वर्ब का N form यूज हुआ है, नाउन प्रोनाउन I है, N form यूज हुआ है, तो मतलब have की फॉर्म्स यूज होंगी। I है, I के साथ हम have यूज करते हैं, यहां पर एक ही have की फॉर्म थी। ओके, लिली डैश गोइंग टू लीड आवर टीम। गोइंग ING फॉर्म मेन वर्ब का यूज हुआ है, गोइंग के साथ हम बी की फॉर्म्स यूज करते हैं। नाउ लिली एक ही है, लिली इज सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम बी की फॉर्म इज यूज करेंगे, यहां पर इज, क्योंकि हम यहां पर अभी प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, सो लिली के साथ हम इज यूज करेंगे, पास्ट फॉर्म नहीं यूज करेंगे। I dash praying that we win tomorrow. I dash praying, pray का ING फॉर्म यूज हुआ है, praying, तो ING फॉर्म यूज हुआ है, तो मतलब B की फॉर्म्स यूज होंगी। I के साथ B की कौन सी फॉर्म होती है, am यूज होती है, so I am praying that we win tomorrow. I hope this lesson is clearer to you now. If you still have any doubts, please let us know. We will be happy to resolve all your doubts. Until then, thank you so much.